I've seen people, who gave their interview in the first attempt. उसके बाद से उनका कभी मेंस नहीं निकला. क्यों? होता क्या है कि भाई आप लेट्स से जब आप कॉलेज में होते हैं तो आप हफ्ते एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ते हो, एग्जाम देते हो और आपके मार्क्स आ जाते हैं. सो यू गेट एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि यू आर डूइंग राइट. ठीक है ना? बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं है. रिवॉर्ड आपको 2 साल बाद मिलेगा. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करोगे तो आप 28 में जाके आईएएस बनोगे. हम लोग क्या होता है कि मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता रहता है. क्योंकि क्या है, आप लेट्स से आप सेम चीज पढ़ रहे हो रोज, आप सिर्फ कंटेंट एक्वायर कर रहे हो एज अ पैसिव रेसिपिएंट. एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो. आपको क्या चाहिए? ग्रेटिफिकेशन. वो आपको कहां से मिलेगा? वो आपको मिलेगा. हेलो एवरीवन, वी आर ऑलमोस्ट 15 months अवे फ्रॉम द 2027 prelims examination. And a lot of you have started preparing for your next attempt. Most of you are in your initial phase of preparation. 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं. Now idea is कि now we have the time that we can fix our gaps, our mistakes in order to ensure that by December we become mains ready and by next year prelims we become prelims ready. अभी बहुत सही टाइम है क्योंकि इसके बाद लेट्स से इफ यू कंटिन्यू दीज मिस्टेक्स इवन टिल जून, जुलाई, अगस्त, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट? बिकॉज द गुड पार्ट विद पीपल हु आर नॉट गिविंग द एग्जाम नेक्स्ट ईयर एंड गिविंग द एग्जाम नेक्स्ट ईयर इज कि आपके पास समय है अपनी मिस्टेक्स, अपने गैप्स को रेक्टिफाई करने का. और दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिक्स दीज मिस्टेक्स. ठीक है ना? तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द मिस्टेक्स, to fix these mistakes, we have a program which is the one-to-one mentorship program, Nitya Pragati. And before I talk about Nitya Pragati, let's hear from the existing students of Nitya Pragati how Nitya Pragati is helping them in rectifying these gaps. So let's hear from them. Good thing about Nitya Pragati is it creates a sense of accountability through our weekly sessions and daily tracking sheets. It helped me to stay disciplined throughout the journey. Nitya Pragati, which means daily progress, and that's exactly what I experienced here. It helped me stay focused, motivated, and mentally strong throughout. Sejal sir, being head of the mentorship, has been conducting multiple strategy sessions for each subject, for each paper, be it for prelims or be it for mains. So what really helped me in this program is the structure that this program provides under Sajal sir. So they helped me in the selection of right sources so that I was not lost in the flood of materials available outside. It was a truly enriching experience for me, especially the strategy sessions by Sajal sir helped a lot. He has told us how to tackle the answer writing part, how to deal with the MCQs, whether they are logical, conceptual. So he has told us each and everything. So you have heard what they have or how they have progressed, how they have rectified those mistakes. Let's now move into those gaps that you have to fix immediately. सबसे पहला pain point है in this UPSC preparation journey is lack of peer group and benchmark analysis. When I say lack of peer group and benchmark analysis, it means कि बहुत सारे लोग रायपुर में, लखनऊ में, जयपुर में, पुणे में, पटना में, असम में, मेघालय में बैठ के तैयारी कर रहे हैं. ठीक है? और उनको लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं. बट हैव दे एक्चुअली सीन कि जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सी, इट इज वेरी क्लियर कि इस एग्जाम में आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे नहीं है, आपका कंपटीशन बाकी लोगों से भी है. 2016 प्रीलिम्स में जैसे ही मैंने प्रीलिम्स का पेपर देखा, मुझे समझ में आ गया कि ये पेपर इज नॉट वेरी टफ एंड देयरफॉर आई कैन नॉट हैव द लास्ट ईयर्स बेंचमार्क, लास्ट ईयर्स कट ऑफ एज द बेंचमार्क. लास्ट ईयर कुछ 100 आई थिंक 97 या 98 गेडी कट ऑफ. मतलब लुकिंग एट द पेपर आई कुड सी स्माइल on the faces of the aspirants, and that made me even more, what we call as anxious, because I felt कि भाई सब आराम से कर रहे हैं,
it means कि the cutoff will increase significantly. It means that I have to score 130 plus. ठीक है ना? And that is what happened. That year the cutoff increased from 97 to 116. 19 mark increase हो गई. ठीक है ना? So the point I want to say is कि आप कैसा कर रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं होता है कि आप आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा. बाकी लोग कैसा कर रहे हैं. I have seen people who gave their interview in the first attempt. उसके बाद से उनका कभी मेंस नहीं निकला. क्यों? ऐसा नहीं कि वो इंप्रूव नहीं हुए, वो इंप्रूव हुए, लेकिन बाकी लोग उनसे ज्यादा इंप्रूव हो गए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट प्रिपेयर फ्रॉम दिल्ली, दे डू नॉट गेट दिस बेंचमार्क एनालिसिस कि भाई बाकी लोग कैसे कर रहे हैं. प्लस दे डोंट गेट अ peer group access. They don't get access to other serious students and see how they are doing, learning from them. ठीक है ना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have introduced in our नित्य प्रगति group 3 kinds of group. जो भी नित्य प्रगति के स्टूडेंट्स हैं, they will be part of these 3 groups: संकल्प, साधना, सिद्धि. संकल्प is open to everyone who is part of Nitya Prakrit. Sankalp means that you have now taken a determination that you want to fix these gaps, and you have shown that dedication by joining the program. ठीक है? Then ये group, ये तो आप you can join this group by enrolling in this program. But the other 2 groups, Sadhana and Siddhi, these groups you can only join by performing, right? So let's say the mentors have given you a target and you have achieved those targets, and let's say you have been writing tests, you are showing improvement in your answer writing and in your prelims marks or the mock test. So based on your mentor's review, we will shift you from Sankalp to Sadhana. ठीक है ना? Because Sadhana means you have not just joined the program, you have shown that seriousness, that dedication, that willingness to learn. ठीक है ना? So there will be 100 people who will be part of Sadhana, 100 other serious students like you. ठीक है ना? और ये आपकी 1 महीने की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है? यहां से एक्सक्लूसिव 25 लोगों का ग्रुप बनेगा जिसको हम कहेंगे सिद्धि. ये वो लोग होंगे जो लिटरली they not just writing, then they're not just following the target, they have shown massive improvement. They are people who are showing potentials of being a ranker. ठीक है ना? तो वो लोग होंगे सिद्धि में. अब इन दोनों ग्रुपों में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल डेली आंसर राइटिंग, और हर सीरियस स्टूडेंट आंसर लिख रहा है. ठीक है? और एक दूसरे को लोग रिव्यू कर रहे हैं. आप भी कुछ सीख रहे हो, आप उनसे भी कुछ सीख रहे हो. प्लस एंड में मेंटर भी आपको बता रहा है कि भाई ये चीज हम ऐड कर सकते हैं. यहां पे हम कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स, मटेरियल, ऐसे टॉपर्स नोट्स जो आज तक पब्लिक नहीं हुए हैं बट दे आर वेरी गुड, ये भी उनको दिए जाएंगे. बिकॉज यू हैव अर्नड इट बाय शोइंग योर डेडिकेशन एंड परफॉर्मेंस. ठीक है ना? तो इनको हम रखेंगे सिद्धि और साधना में. अब ये तीनों ग्रुप फ्लेक्सिबल हैं. मतलब लेट्स से आप सिद्धि में आ गए, बट नाउ यू आर शोइंग सम स्टैग्नेंसी, सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन शिफ्ट back to sadhana or even back to sankalp. Or there are few people in that sankalp group who are actually improving, who are showing dedication. They can be transformed or they can be entered into sadhana and siddhi. ऐसा नहीं कि एक बार आप ग्रुप में आ गए बस आपकी मेहनत खत्म. You will have to work hard to keep your place in the group. Now by joining these 2 groups, you will get access to other dedicated and serious students. Right? And the whole idea is you will also be able to see कि भाई आपका क्या लेवल है. आपने आपको बहुत अच्छा समझ रहे थे, पर आपसे भी अच्छे लोग यहाँ पे हैं, तो आपको उनसे सीखना है. ठीक है ना? And usually these good peer group for UPSC preparation does play an important role. I have seen people, 4 लोग आते थे मेरे साथ डिस्कस करते, सीरियस 4 लोग. आज चारों की चारों किसी ना किसी सर्विस में है.
कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया, तो डेफिनेटली अ गुड serious peer group does help you in clearing the exam. ठीक है ना? So that's how we are solving your problem of lack of peer plus benchmark analysis. ठीक है? Second pain point in this UPSC preparation journey is lack of genuine and credible review. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है, जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं, or how much how well you're writing answers, it's important that you're doing this, but it's even more important that you get it reviewed from somebody who is credible, right? आप अगर जाके, and I've seen these cases a lot of times, that people coming to me and showing कि सर मेंस हमारा क्लियर नहीं हो रहा है डिस्पाइट हम अपनी टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हैं, एंड विद इन 2 minutes I can identify 10 different gaps कि भाई ये आप क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके आंसर्स में. अब उससे उनको समझ में आ रहा है कि सर हमें तो रॉन्ग डायरेक्शन दिया गया था, हमें तो बोला गया था भाई आप तो टॉप 50 वाले हो, टॉप 100 वाले हो, टॉप 10 वाले हो. तो वो आदमी अपने 2 साल खराब किया बिकॉज ही वॉज गेटिंग हिज आंसर्स रिव्यूड फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट क्रेडिबल. ठीक है ना? तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ जेन्युइन एंड क्रेडिबल रिव्यू दैट यू नीड टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट. ठीक है ना? क्योंकि देखो, लैक ऑफ रिव्यू से ज्यादा डेंजरस है मिसगाइडेड रिव्यू. क्योंकि आप लेट से कुछ प्लान बना रहे हैं, आप कोई बुक रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको अगर गलत बुक, गलत नोट्स सजेस्ट कर दिए गए, देन दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक इशू. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड इन द नित्य प्रगति प्रोग्राम, जिसमें हम आपके जो रॉन्ग हैं उन रॉन्ग को एनालाइज करते हैं. आप भी एनालाइज करिए और अपने मेंटर से भी डिस्कस करिए कि ये जो 6 गैप्स हैं, इंटरप्रिटेशन गैप, अवेयरनेस गैप, कॉन्सेप्चुअल गैप, रिवीजन गैप, फैक्चुअल गैप और गेस वर्क और इंट्यूशन गैप, इन गैप्स के अंदर आपके किस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और हम कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं. तो जब आप ये चीज, दैट्स व्हेन यू विल गेट योर प्रीलिम्स test reviewed like this, then you will be able to actually understand कि आपकी दिक्कतें कहां पे हैं और आप उन दिक्कतों को रेक्टिफाई कैसे करना है. ठीक है ना? सेम विथ मेंस. अब यहां पे देखो, ये सारे मेरे पैरामीटर्स हैं जो मैंने बनाए हैं, और यही पैरामीटर्स में आपका मेंटर, आपका पर्सनल मेंटर भी डिस्कस करेगा कि आपने आंसर लिखा है. आपकी ये जो पैरामीटर्स है, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स, कंटेंट डेप्थ, structural coherency, number of points, maps, diagrams, examples, case studies, committee judgment and conclusion, इस बेसिस पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे आंसर में दिक्कत कंटेंट की है या मेरे आंसर में कंटेंट अच्छा है बट स्ट्रक्चर खराब है. सो बाय गेटिंग राइट रिव्यू थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स, you will actually know that which are your gap areas and how you are rectifying those gaps with any subsequent tests. Third very important pain point in this UPSC preparation journey is lack of evidence-based preparation, which means कि हम पढ़ते रहते हैं. I have also said it earlier also. भाई, आपको कोलू के बैल की तरह मेहनत नहीं करनी. You don't have to study 18 hours a day. And if you are studying 18 hours a day, you are foolish. It means you are not studying smartly. Right? It's very important that you study with a proper plan. And when we say with a proper plan, which means that you should know that, okay, these are the 20% themes जहां से 80% questions आ रहे हैं. So I will have to focus on those themes more. So that's what we call as evidence-based preparation. You are preparing because you know that this theme is important. You know that a question will come from border management. You know a question will come from urban local bodies. You know a question will come from comparison of India and the other constitution. So when you have this kind of clarity, then and you prepare based on that, then whatever number of hours you are studying, you are actually studying what is required for the exam.
because you are not here to do any kind of PhD, you are here to clear the exam. तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, if you see here, that's how we give study plan to mentors. अब ये एक ब्रॉड है, इसके अंदर मेंटर मेंटी के साथ बात करके उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को देखते हुए टेलर भी करता रहता है, कुछ को ज्यादा देता है, कुछ को कम देता है. वर्किंग प्रोफेशनल्स में इसको भी थोड़ा छोटा कर देता है, सो दैट बिकॉज यू हैव लेस नंबर ऑफ टाइम, सो यू कैन avoid certain things which are not that important. So these things which are here, ये clearly आपको डायरेक्शन देगा कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब तक पढ़ना है. ठीक है ना? This is the kind of a study plan that we give. Fourth and the very important pain point for an aspirant is lack of consistency. लंबा टाइम है यार, 15 महीने हैं प्री के बाद. अब 15 महीने तक कंसिस्टेंट रहना, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग. तो होता क्या है कि व्हाई कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर एन एस्पिरेंट इज बिकॉज यूजुअली जो यूपीएससी प्रिपरेशन है उसका गेस्टेशन पीरियड इज लॉन्ग, राइट. देयर इज लो इमीडिएट रिजल्ट. होता क्या है कि भाई आप लेट्स से जब आप कॉलेज में होते हैं तो आप एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ते हो, एग्जाम देते हो और आपके मार्क्स आ जाते हैं. सो यू गेट एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि यू आर डूइंग राइट. ठीक है ना? बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं है. रिवॉर्ड आपको 2 साल बाद मिलेगा. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करोगे तो आप 28 में जाके आईएएस बनोगे, 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद. ठीक है ना? तो हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन प्रिफर्स क्विक रिवॉर्ड्स. हम कुछ करें और हमें तुरंत रिवॉर्ड मिल जाए. ठीक है ना? एंड दैट्स व्हाई ये जो रील्स के जमाने में, शॉर्ट्स के जमाने में जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं, but there is a difficulty to remain consistent for next 2 years. Similarly, many aspirants जो हैं वो ट्रैक करते हैं, मतलब there is a clear और there is lack of clear process metric कि जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं. हम आवर्स स्टडी तो काउंट करते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, बट उतने घंटों में हम टेक्निकली कितने पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं. तो विदाउट हैविंग दोज मेजरेबल माइलस्टोन्स, हम लोग क्या होता है कि मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता रहता है. क्योंकि क्या है, आप लेट्स से आप सेम चीज पढ़ रहे हो रोज, आप सिर्फ कंटेंट एक्वायर कर रहे हो एज अ पैसिव रेसिपिएंट. एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो. आपको क्या चाहिए? ग्रेटिफिकेशन. वो आपको कहां से मिलेगा? वो आपको मिलेगा कि जब जो आप चीज पढ़ रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिले. उसका आपको रिजल्ट मिलेगा 2 साल बाद. लेकिन अगर आप लेट्स से उस चैप्टर को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, आंसर लिख लो, and you get it reviewed by somebody who is expert, then that give you some kind of gratification कि what I am doing is right, it is giving me good result, and that will keep you motivated. ठीक है ना? Third is result oriented anxiety, that what if I fail, right? What if my attempt is wasted? तो ये सारी चीजें भी आपको consistency maintain करने में परेशानी देती है. सिमिलरली देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड फीडबैक. जैसे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो डेली वहां पे कोचिंग होती है, आप प्रैक्टिस करते हो और आपको फीडबैक मिल जाता है कि आप नेट प्रैक्टिस में कैसी बॉलिंग कर रहे हो, कैसी बैटिंग कर रहे हो. बट यूपीएससी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू प्रिपेयर अलोन. कोई आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है, कोई रियल टाइम इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है आपकी प्रिपरेशन का. सो आइसोलेशन रिड्यूसेस कंसिस्टेंसी, right? And lastly, perfectionism paralysis, which is आप ट्राई करते हो कि पहले मैं सब कुछ पढ़ लूं, एकदम टॉपर टाइप कंटेंट एक्वायर कर लूं, फिर मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा, टेस्टिंग शुरू करूंगा. तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी रिवॉर्ड्स इम्परफेक्ट बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. एक है ना, देयर इज अ कोट दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. आप जब इनिशियली प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, ग्रेजुअली मिलेंगे. तो अब कंसिस्टेंसी के लिए वी आर वेरी सीरियस इन दिस नित्य प्रगति प्रोग्राम
एक तो पहली बात तो यही है कि जो हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, तो उस ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो, तभी हम आपको कंसीडर करेंगे for the above hired 2 groups. So there is a reward for that. There is a reward to be consistent. Secondly, there is this daily accountability and productivity sheet, right? जो आपको every day after the day ends, you have to fill it and you have to show it to your mentor. कि भाई, this is what you have given me this target for a week and this is what I have been able to do that in a week, right? So if let's say there is a gap between the targets given and achieved, then at least you have that fear that you have to face your mentor and your mentor can take you to task. तो एक external person का आपके पास एक fear रहेगा, ठीक है ना? And that is what you can do it. ठीक है ना? Similarly, इसके अलावा जो हम आपको टारगेट्स देते हैं कि भाई एक वीक में आपको इतना करना है, तो आपको पता है कि आपको अपना गोल पता है, आपका गोल आईएएस क्रैक करना है, बट आपका वीकली गोल आपको पता है, तो वो वीकली गोल आपको एक मोटिवेट करता है टू रिमेन कंसिस्टेंट. व्हाई? बिकॉज लेट्स से द फर्स्ट 3 days you have not been very productive. Now for the next 4 days, you know that you still have a lot of target to achieve. So that fear and that guilt feeling will help you in pushing those extra hours in the next 4 days. Second is review, right? You get whatever you are doing, you are getting reviewed it by your mentor. So you know that you are improving. When you know that you are improving, you feel motivated and you remain consistent. And daily assessment. हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, हम आपको पीवाईक्यू वर्कबुक देंगे, आप डेली उस चीज को लिख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि वो जो आप पढ़ रहे हो सुबह शाम तक, हाउ मच यू आर डूइंग एक्चुअली. नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट पेन पॉइंट इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी इज वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटेजी. आप क्या करते हो? रैंकरों को देखते हो और आप रैंकरों को देख के आप ये चीज बोलते हो कि रैंकर ने ऐसे तैयार किया था, मैं भी ऐसे ही करूंगा तैयारी, राइट? अब होता क्या है यार, हर आदमी इंडिविजुअल है. आई हैविंग मेंटर्ड 550 प्लस रैंकर्स कैन टेल यू विथ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस कि majority of my mentees have prepared differently. So there is no one unique strategy. There is unique strategy for you, right? So if you will completely a topper strategy, you will bound to fail. There was one ranker who is in top 50 rank. Now she was not drawing diagrams in his mains answers because she felt that it was very time taking, right? Now, ultimately, she came to me, took my advice. I said, why are you wasting your time in diagrams? You can focus on the other aspects and, improve that. And that's what she did. She got top 50 rank. So what I'm saying is that it is not compulsory to draw a diagram. If you're drawing the diagram with ease, good for you. But even if you're not drawing it, you can still get marks. For example, I'll show you this copy. Both of these candidates are writing interview this year, right? You see this copy. There is not a single diagram that has been drawn, just points. You see this copy. There are a lot of, there is a flow chart here. There is a kind of a flow chart here. A lot of diagrams are being drawn. ठीक है ना? Now both of them are giving interviews, but both of them have a different answer writing approach. Because somehow one feels that I am not comfortable in drawing diagram, I will focus on increasing the number of points. On the other hand, this person feels that perhaps by drawing diagram, I will make my presentation attractive. That is my point is the same. That one size fits all approach नहीं होना है आपको, ठीक है ना? तो जरूरी है कि आप अपनी यूनिक स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करो और उस पे वर्क करो, ठीक है ना? Same with prelims. I mean, I have never solved 100 questions. I always used to solve 80 questions. It worked with me always, right? Because my accuracy was good. So just by seeing that XYZ ranker had said कि भाई वो 98 questions करता तो आप भी करो, I think it's foolishness. Next pain point is no proper artillery to win this battle. See, understand this thing कि there is a need for you to prepare
or to have good artillery to win a battle. जब बाबर इंडिया आया था तो उसके पास गन पाउडर था. बिना किसी अच्छी आर्टिलरी के आप कोई जंग नहीं जीत सकते हो. ठीक है ना. और यूपीएससी में मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिलरी है आपके नोट्स, आपके अपने नोट्स जो आपने खुद बनाए. डेफिनेटली आपने वो नोट्स सारथी के या और जगह से कलेक्ट करके बनाए होंगे, बट कैसे बनाए होंगे दैट इज इंपॉर्टेंट. जैसे अब ये देखो, दिस इज द नोट ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट. इफ यू सी दीज नोट्स, एक छोटे से नोट्स में जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप देखो, इंट्रो कंक्लूजन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, डेटा पॉइंट, केसेस, इश्यूज जो हम यूज कर सकते हैं, और कीवर्ड्स. पेंडेंसी ऑफ केसेस के लिए डेटा, सुप्रीम कोर्ट केसेस, कीवर्ड्स, ह्यूमन वैल्यूज, कीवर्ड्स. यू सी, ये यूनिक है क्योंकि ये इसने बहुत जगह से हेल्प ली है और अपने नोट्स बनाए. भाई आप सेम चीज लिखोगे जो बाकी भी लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स कहां से मिलेंगे? ये जो यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस बहुत जरूरी है फॉर यूपीएससी. नित्य प्रगति प्रोग्राम में हम आपको नोट्स सारे देंगे. हम आपको विल गिव यू नोट्स, बिग नोट्स ऑल्सो, and we'll give you one pager also. But along with that, we will also ensure that we will help you in making your own unique notes. तो आपकी जो आर्टिलरी है वो हम इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप अपने आप अच्छे आंसर लिखोगे. देन रिसोर्स ओवरलोड. प्रॉब्लम क्या है कि भाई इतने सारी बुक्स हैं, इतने सारे टेलीग्राम पीडीएफ्स हैं, इतने सारे आप जाओगे ओआरएल में रहते हो, इतने सारे नोट्स हैं, आप थक जाओगे, प्रिपेयर करते करते थक जाओ. राइट. तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंश्योर करना है कि आप लिमिटेड रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करो. ठीक है ना. तो बहुत जरूरी है, अगर आप नित्य प्रगति में हो तो आपको इस टाइप के बड़े नोट्स भी हम देंगे. देखो बिल्कुल ये एक मेंस आंसर के तरह हम आपको दे रहे हैं. इंट्रोडक्शन देंगे, सिग्निफिकेंस, उसमें सब में डेटा, केसेस रहेंगे, कंसर्न्स, वे फॉरवर्ड. ठीक है ना. और विद प्रॉपर कीवर्ड. साथ ही आपको ऐसे वन पेजर नोट्स भी देंगे हम, ऐसे वन पेजर नोट्स भी आपको हम देंगे, और उसके बाद आपके नोट्स बनवाएंगे भी. तो सारा रिसोर्स हम आपको देंगे, इसको आप रेफर करो और किसी चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है. देन नेक्स्ट पेन पॉइंट इज पैसिव रीडिंग ऑफ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स. पढ़ते जा रहे हो, बस रीड करते जा रहे हो, बिना एक्टिव रिकॉल के, बिना एक्टिव एंगेजमेंट के. इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली इंश्योर कि आप चीजों को रजिस्ट कर पाओ, आप चीजों को रिकॉल कर पाओ. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टू एक्चुअली एंगेज विद द कंटेंट. ठीक है ना. क्योंकि आप अगर सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रहे हो, भूल जाओगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद. ठीक है ना. तो उसके लिए इन नित्य प्रगति प्रोग्राम वी हैव मल्टीपल वेज टू कीप यू एंगेज, टू कीप यू डू एक्टिव रिकॉल. सबसे पहले पॉलिटी में लेट्स से आप लक्ष्मीकांत या फिर हमारे नोट्स पढ़ रहे हो, आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा. आफ्टर यू आर डन विद द चैप्टर, वी आर गिविंग यू दिस वन लाइनर क्वेश्चन. जैसे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है, आपने वो चीज पढ़ ली. अब दीज आर द प्रोबेबल वन लाइनर्स जो आप अगर आफ्टर यू हैव रेड इट, आप इसको आंसर कर पा रहे हो कि नहीं. अगर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने सही तरीके से रीडिंग करी है. नहीं कर पा रहे हो, इट मींस दैट यू हैव नॉट गॉन टू द डेप्थ, योर कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल नॉट क्लियर. जैसे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमनली टर्म द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. Analyze the definition of state under Article 12. Discuss its implication for enforceability of fundamental rights. In what distinct ways are rights enumerated in Part 3 of the enumerate the 6 broad categories of fundamental right as per the scheme of Part 3 of the Constitution. तो ये आपके टेक्निकली फंडामेंटल राइट से ये वन लाइनर अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप सही तरीके से वो चैप्टर पढ़ाए, तो आपका एक्टिव रिकॉल हो गया इससे. ठीक है ना. सिमिलरली हम आपको 5000 प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अलावा 5000 प्लस
प्रीलिम्स रिवीजन क्वेश्चंस देंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओ, उन क्वेश्चंस को लगाओ, उन एमसीक्यूज को लगाओ और देख पाओ कि आप टेक्निकली जो आपने पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो दैट्स ऑल्सो यू आर एंगेजिंग एक्टिवली विद द कंटेंट। साथ ही साथ हम आपको PYQ वर्कबुक भी देंगे, जिसमें ऐसे आप देखो, जैसे लेट्स से आपने फेडरलिज्म पढ़ लिया, अब फेडरलिज्म के बाद आप इसको सॉल्व करो कि भाई जो जो क्वेश्चन आए हैं फेडरलिज्म से मेंस में, आप उस पर आंसर लिख के देखो और आप देख पाओ कि आप कितना कर पा रहे हो। तो आप लिख के, जो चीज आप लिख के तैयार करते हो वो आपको 6 महीने बाद भी याद रहती है। ये आप मेरी एक्सपीरियंस से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेन पॉइंट इज lack of templates of answer writing, lack of toolkits for prelims preparation। तो जो टेम्पलेट्स है आंसर राइटिंग की, वो आपको कैसे हेल्प करती है? जैसे आपने पहले से ही तैयार कर रखा है कि इंट्रोडक्शन अगर आएगा, अगर हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन आएगा तो मैं सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करूंगी, एवोल्यूशन से स्टार्ट करूंगी, कोट से स्टार्ट करूंगी। अगर कंक्लूजन आएगा तो मैं क्या करूंगी? अगर आपने पहले से ही तैयार कर रखे हैं, एग्जाम में 7.5-8 मिनट में आपको आंसर लिखना है। अगर आपके पहले से ही एक बेस तैयार है कि अगर क्वेश्चन में कीवर्ड आएगा इंक्लूसिव ग्रोथ, तो मैं ये 7 डायमेंशन में सोचूंगा, तो आप बहुत इजीली आंसर लिख सकते हो। सेम प्रीलिम्स के लिए अगर आपके पास एक टूल किट है, स्मार्ट टूल किट, कि भाई अगर मैं स्पीशीज को पढ़ रहा हूं तो बेस्ड ऑन द PYQ एनालिसिस दीज आर द 8 डायमेंशंस आई हैव टू फोकस अपॉन while preparing species, it will help you with that, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 24 लेक्चर्स में लूंगा मेंस आंसर राइटिंग पे, जहां पे इन टेम्पलेट्स को मैं आपको परफेक्शन तक लेके जाऊंगा और लगभग 18 लेक्चर्स लूंगा प्रीलिम्स में, जो जहां पे आपको मैं स्मार्ट स्टडी टूल किट समझाऊंगा। और इन टेम्पलेट्स का यूज लास्ट ईयर AR1 ने भी किया था, एंड आप उसके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियरली आप 80% इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपके 450 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है ना। सिमिलरली प्रीलिम्स का टूल किट यूज करके, ये मेरे पास प्रीलिम्स के बाद का मैसेज आया है कि आपके अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और स्मार्ट वर्क और गेस्ट वर्क क्लासेस से मेरे 125 प्लस बन रहे हैं प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ये देखिए, इस टाइप के स्टूडेंट्स जो अभी एग्जिस्टेंस होते हैं उनके मैसेज भी आते हैं। एंड लास्ट पेन पॉइंट इज डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन। इसके लिए व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्किप, व्हेन टू मूव अहेड, एक बड़ा ही बेसिक प्रॉब्लम है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरीके से, अगर हमारे पास एक टाइम टेबल रहे, एक पर्सनलाइज टाइम टेबल रहे जो आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से रहे, तो दैट प्लस एक कांस्टेंट इंटरव्यू गिवन मेंटर रहे आपके साथ, जो आपको हर स्टेज पे गाइड करता रहे, GPS की तरह। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज व्हाट यू नीड, ठीक है ना। देखो, इसके बाद मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, ये सब चीज आपको तभी हेल्प करेंगी जब आप खुद मेहनत करने को तैयार। आप मेहनत नहीं करोगे, आप स्पून फीडिंग चाहोगे, कोई प्रोग्राम, ना मैं कोई हेल्प कर पाऊंगा, ना मेरे मेंटर्स आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। सो द न्यू बैच ऑफ नित्य प्रगति स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of February, एंड इट डज नॉट मैटर आप ज्वाइन करो, कब भी ज्वाइन करो, बिकॉज द होल आइडिया इज दैट कि वट एवर डे यू ज्वाइन द प्रोग्राम, आप उसी के हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी, टाइम टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस कर दोगे, ठीक है ना। इस प्रोग्राम में जो हमारा एक बेसिक एजेंडा मैं आपको अगर बता दूं, तो फरवरी से मई तक हम आपका बेस को तैयार करेंगे, ठीक है ना। बेस का मतलब हो गया कि आपके जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको हम तैयार करवाएंगे, विच इज पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद जून से हम मेंस प्रिपरेशन में लग जाएंगे। जून से दिसंबर आपको मेंस रेडी करेंगे, आपके नोट्स बनवाएंगे, आपको आंसर राइटिंग एक्सपर्ट बनाएंगे, मेरी आंसर राइटिंग क्लासेस होंगी, ठीक है। जनवरी से हम प्रीलिम्स रेडी बनेंगे, और उसके बाद
अल्टीमेटली जून से अगस्त हम आपका मेंस, जो लोग प्री क्लियर कर रहे होंगे उनका मेंस पे फोकस करेंगे, और फाइनली जो मेंस क्लियर करेंगे उनका हम इंटरव्यू पे फोकस करेंगे। सारी चीज हम आपको दे रहे हैं इसमें आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप, आपका एक मेंटर रहेगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई और मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है जहां सारे मेंटर्स इंटरव्यू गिवन है। हमारे सारे मेंटर्स इंटरव्यू गिवन है, मेरी जिम्मेदारी है वो, ठीक है ना। और दे विल बी एटलीस्ट 24 लेक्चर्स ऑन आंसर राइटिंग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अच्छा, ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो आप दिल्ली में हैं तो भी आ सकते हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो भी आ सकते हैं। आंसर राइटिंग के लेक्चर्स मेरे हैं, नोट मेकिंग के लेक्चर्स मेरे होंगे। कैसे एग्जाम में रैंक लानी है वो आपको मैं बताऊंगा। इंप्लीमेंट कौन करेगा? आपका पर्सनल मेंटर। रिव्यू कौन करेगा? आपका पर्सनल मेंटर, ठीक है ना। तो सारी जो टेम्पलेट्स टूल किट है वो मेरी ही होंगी, इंप्लीमेंट करेगा आपका पर्सनल मेंटर, ठीक है ना। इसके अलावा सारा रिसोर्स मटेरियल हम आपको देंगे, प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर, सारा 1 पेजर नोट सारा। इसके अलावा कुछ भी आपको रेफर नहीं करने। करंट अफेयर्स की आपको क्लासेस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में टॉपर्स के सेशन भी होते रहेंगे, जो मोस्टली सब मेरे जो स्टूडेंट्स जो टॉप किए हैं वो भी आपके साथ एंगेज करेंगे। इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग के लिए मेंस टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ठीक है। एसए के कुछ टेस्ट हैं, प्लस आंसर राइटिंग 3 लेवल पे होगी। डेली आंसर राइटिंग की क्लासेस होंगी और लाइव आंसर राइटिंग होगी फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, ठीक है। जहां पे 5 क्वेश्चन आपको रोज दिए जाएंगे लिखने के लिए, आप लोग लिखोगे और उसके बाद मेंटर डिस्कस करेगा उनको कि इसमें क्या हम कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू की वर्कबुक दी जाएगी, जो आप जिसमें आप आंसर लिख के आप अपने मेंटर को दिखा सकते हो। और तीसरे लेवल पे मेंस टेस्ट सीरीज तो होगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड। तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में है, मतलब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। एंड so that's how it is going. So there is a form also there in the description box, and there's a number also that is given. You can call and inquire about the program. तो अभी बेस्ट टाइम है, आई थिंक वी हैव 15 months, and let's take this dedication, let's take this pledge, and let's crack UPSC. Thank you.